Now we are going to start a very important topic of this chapter, which is balancing a chemical equation. First, I will let you know the meaning of the word balancing. Balancing का मतलब ये हुआ कि इक्वेशन के दोनों साइड में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के नंबर को इक्वल करना. The process of making the atoms of different elements equal in both the sides, that is reactant side and product side. Suppose in reactant side we have CH and O. Three kind of atom are there. So in product side also the same three kind of atom will be there. बैलेंसिंग का मतलब कि जितने कार्बन एलएचएस में हो उतने ही कार्बन आरएचएस में. कार्बन और हाइड्रोजन बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट कार्बन इन एलएचएस एंड आरएचएस शुड बी इक्वल, एच इन एलएचएस आरएचएस शुड बी इक्वल, एंड ओ का नंबर जितना एलएचएस में हो उतना ही आरएचएस में. दैट्स कॉल्ड बैलेंसिंग. एंड व्हाई इट इज नेसेसरी? बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड. It is necessary to satisfy the law of conservation of mass. Law of conservation of mass कहता है the mass can neither be created nor can be destroyed during the reaction. So in the reactant side, if there are 2 mole of carbon, so during the reaction neither more carbon will be added nor the carbon will be destroyed. Therefore, if 2 mole of carbon is there in LHS, in RHS also there should be 2 mole of carbon. If there are 6 mole of hydrogen in LHS, there should be 6 mole of hydrogen in RHS only also, because these matters elements are not, neither they are produced nor they are destroyed. So to satisfy the law of conservation of mass only, the balancing is needed. And for the balancing, the method which we use is called hit and trial method. It's called hit and trial method. Now, some example I have taken, and that example I'll be explaining you. Like the first example which we have got here is combustion of methane is CH4. Combustion of methane CH4, combustion means reaction of CH4 with O2 to form CO2 and H2O. This is the first reaction. Now let me tell you first thing, यहाँ जो ये कोफिशिएंट होते हैं, जैसे CH4 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ जो नंबर लिखा होता है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट 1 माना जाएगा, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है तो 1, ये भी 1, ये भी 1, ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. While using hit and trial method, हम किसी भी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए फ्री हैं. We can multiply it by any number or we can divide by any number, and we keep multiplying until and unless the atoms of different elements become equal. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं. अब यहां कार्बन LHS में जो है वो है 1, RHS में भी कार्बन 1 है, LHS में हाइड्रोजन 4 है, जबकि RHS में हाइड्रोजन 2 है. अब यहां मैं सिर्फ हाइड्रोजन को चाहूं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं टू मेक इट 4, इट्स नॉट पॉसिबल. मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा H2O मल्टीप्लाई होगा. अब हाइड्रोजन को 4 करने के लिए इस पूरे H2O को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया. अब हम आते हैं ऑक्सीजन में. यहां ऑक्सीजन 2 है,
जबकि RHS में 2 ऑक्सीजन तो यहां है, और एक H2O में 1 ऑक्सीजन, तो 2 H2O में 2 ऑक्सीजन यहां है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन RHS में हो गया 2 वाटर का, 2 O2 का, 4 ऑक्सीजन, जबकि यहां ऑक्सीजन का नंबर 2 ही है। तो इस पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हियर ऑल्सो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स इक्वल टू 4। दैट्स द बैलेंस्ड इक्वेशन। 1 CH4 plus 2 O2, 1 CO2 plus 2 H2O. That's the balance equation which we have done here. अब ये जो 1, 2 ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में हम लिखें, टेबल बना लें, एक कॉलम में सीरियल नंबर, एक कॉलम में एलिमेंट लिखें LHS और RHS में। तो 3 तरह के एलिमेंट हैं यहां पे। 3 जो तरह के एलिमेंट हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन LHS में 1 है, RHS में कार्बन 1 है, तो कार्बन का नंबर LHS RHS दोनों में हो गया 1। हाइड्रोजन LHS में 4 है, RHS में 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, एक H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 2 H2O में 4 हाइड्रोजन, तो ये भी 4 है। ऑक्सीजन LHS में 2 2 जा 4 है, ये 2, एक O2 में 2 ऑक्सीजन, 2 O2 में 4, यहां पे 2 ऑक्सीजन यहां और 2 ऑक्सीजन वाटर के हो गए, तो यहां भी टोटल ऑक्सीजन हो गया 4। The atoms of different element has become equal. That's why the equation has been balanced. That is how we do balance. Now, one more example मैं ले रहा हूं और करके दिखाऊंगा आपको। Second example I am taking Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Now try to balance. Here Fe is 1 while here Fe is 3. इसको 3 करने के लिए यहां 3 लगा दिया। कोफिशिएंट को ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। H2 है, यहां भी H2 है, कोई बात नहीं। O यहां 4 है, जबकि ये यहां O 1 है। अब सिर्फ O को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप चाहो O को यहां 4 लगा ले, दैट्स नॉट पॉसिबल। वाटर का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सब्सटेंस ही मल्टीप्लाई होगा। तो what I did, ये H2O है, इसको 4 करने के लिए इस पूरे H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही पूरे H2O को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, O का नंबर तो 4 होगा, लेकिन H का नंबर भी चेंज हो गया। H पहले जो 2 हुआ करता था, अब 8 हो गया, तो H का नंबर 4 2 जा 8, 8 बनाने के लिए यहां भी 4 कर दिया। Therefore, balanced equation is 3Fe plus 4H2O, Fe3O4 plus 4H2. There are 3 types of elements: Fe, H and O. These are the 3 types of element we have. 3 elements are there. Fe in LHS 3. In RHS also Fe is 3. O in LHS is 4, 4H2O माने 4O. Here also it's 4. And H4 2 ja 8, here also it's 8. Therefore the atoms of different element has become equal, hence the equation is balanced. This method of balancing is known as hit and trial method of the balance. Few more example I wanted to give for balancing. It is
NH3 plus O2 gives NO2 plus H2O. Try to balance again using same hit and trial method. Now N is 1, here N is 1, good, no problem. H is 3 in LHS, in RHS H is 2. अब H को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, यहां 2 लगाया ताकि H 6 हो जाए, और यहां जैसे ही 2 लगाया यहां 3 लगाना पड़ेगा ताकि यहां भी H जो है वो 6 हो जाए. अब चूंकि यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो नंबर ऑफ H तो चेंज हुआ है, N का भी नंबर चेंज हो गया. N अब पहले 1 होता था, अब 2 हो गया. Here also to make the number of N 2, I multiplied by 2. Now in both the side 2 element has been balanced, N and H. This is unique example. एक नई चीज आपको यहां सीखने को मिलेगी. अब आप थर्ड एलिमेंट को बैलेंस करो, O2 को. In LHS number of O is 2, while in RHS it is number of O is 2 2 जा 4 यहां हुआ और 3 1 जा 3 यहां हुआ. नंबर ऑफ O is 7. अब इस O2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 7 हो जाए, और इसके लिए I should multiply the O2 with 7/2. यदि इसको 7/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने 3.5 से, तो 7/2 into 2 ये हो जाएगा 7, and the number of O also will be balanced. Now this equation is balanced, but problem ये है कि कोई भी कोफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए इन द बैलेंस्ड इक्वेशन. नन ऑफ द कोफिशिएंट शुड बी इन फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो फ्रैक्शन में यदि आ रहा है तो लिख लो, उसके बाद फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करो, पूरे इक्वेशन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से. अब जैसे ही डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन को, ये हो जाएगा 2 2 जा 4NH3, 2 into 7/2 O2, ये हो गया 7O2, 2 into 2 4NO2, और 2 into 3 6 वाटर. अब चेक कर लो कि इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ. चेक इट आउट, कर लो चेक. 3 तरह के एलिमेंट हैं, N, H एंड O. LHS में N का नंबर हुआ 4, RHS में भी N का नंबर हुआ 4. H 4 3 जा 12 in LHS. Understand? RHS में 6 2 जा 12. रह गया O 7 2 जा 14. यहां हुआ 4 2 जा 8 plus 6 1 जा 6. 8 plus 6 14. The atoms of different element has become equal. That's why the equation is balanced. ये एक नया तरीका था. यदि कोई सब्सटेंस फ्रैक्शन में आ रहा है तो आने दो एक बार. उसके बाद
पूरे इक्वेशन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन अपने आप हट जाएगा। जो दूसरा एग्जांपल मैंने दे रखा है ये खुद एक बार ट्राई करना, कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये आपको खुद ट्राई करने के लिए मैं छोड़ रहा हूं। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं आयोनिक रिएक्शंस का, आयोनिक कंपाउंड्स का। वन मोर एग्जांपल फॉर द बैलेंसिंग आई विल गिव फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। तो बैलेंसिंग हर तरह से कंप्लीट हो जाएगी एंड यू विल बी इन सिचुएशन टू अटेम्प्ट each and every question from balancing. One more example I am giving for the balancing. Again, this is a special example for ionic compound. और equation है, मान लो लिया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 SO4 whole thrice plus barium hydroxide BaOH whole twice. Now the product formed aluminium hydroxide AlOH whole thrice plus barium sulfate BaSO4। ये एक आयोनिक रिएक्शन है इन विच देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। अब ऐसे रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो यहां पे जैसे टेबल बनाया तो सीरियल नंबर में 4 चीजें आई। एक तो लिया Al, दूसरा ये जो SO4 सल्फेट आयन है इसको पूरा हम एक यूनिट लेके चलते हैं। सल्फेट में S और O को अलग अलग बैलेंस नहीं करेंगे, पूरे SO4 को मैंने एक यूनिट लिया है, क्योंकि SO4 का नंबर बैलेंस करोगे LHS RHS में तो S और O का नंबर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड हो गया बेरियम Ba, और चौथा हाइड्रोक्साइड के पूरे OH के नंबर को हम बैलेंस करेंगे तो चौथा हो गया OH। नाउ ट्राई टू बैलेंस इट। इन LHS एल्यूमिनियम इज 2। पहले एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं, देखो तरीका कैसे है। अब एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए एल्यूमिनियम यहां है, यहां आप 2 लगा नहीं सकते, यहां 2 लगाओगे तो पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम को 2 बनाने के लिए एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे एल्यूमिनियम तो 2 हो जाएगा, लेकिन OH का नंबर हो गया 6। 2 3 जा 6। तो OH को 6 बनाने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये भी 3 2 जा 6 हो जाए। अब जैसे ही इसको 3 से मल्टीप्लाई किया OH तो 6 हुआ, लेकिन Ba का नंबर 3 हो गया। अब Ba का नंबर 3 करने के लिए फिर यहां 3 से मल्टीप्लाई किया। देख रहे हो ना एक एक करके। अब जैसे यहां 3 से मल्टीप्लाई किया Ba तो 3 हुआ, साथ में SO4 भी 3 हो गया। यहां SO4 ऑलरेडी 3 है, हेंस द इक्वेशन नाउ इज बैलेंस्ड। हर एलिमेंट का नंबर इक्वल हो गया। एल्यूमिनियम LHS में 2 है, RHS में भी 2 है। SO4 LHS में 3 है, RHS में भी 3 है। Ba LHS में 3 है, RHS में भी 3 है, 3 3। एंड इफ आई गो फॉर OH 3 2 जा 6, LHS में 6 है और RHS में भी 2 3 जा 6 हो गया, 6 है। Atoms of different element has become equal, hence the equation is balanced. That is how we do the
balancing of equations using the method called hit and trial method. This is one of the most important topic of the reaction balancing by giving 3-4 different examples. I explained you the balancing, what the meaning of balancing, why is it required to satisfy the law of conservation of mass, and how the balancing is done using hit and trial method. Now, 2 more topics are left in this chapter. One is how to make an equation more informative. एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, एक तो ये टॉपिक बचा है और दूसरा टॉपिक बचा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इन दोनों में जो डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगे उनमें ज्यादातर एग्जांपल्स तो हमने पहले ही कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू देम, दो most of the examples will be repeated again, most of the reactions will be repeated again. So उन reactions को आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो दोबारा देखना पड़ेगा। Now the next topic we are going to have is how to make a chemical equation more informative. क्या वो तरीके हैं जिनको यूज करके हम अपने इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे कर सके। यहां पे एक मैंने एग्जांपल दिया है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिया है। केमिकल रिएक्शन है एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग द रिएक्शन। आप देखो एक सिंपल रिएक्शन को लिखने में कितना सारा एफर्ट हमें लगाना पड़ रहा है। इस एफर्ट को कम करने के लिए केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया जो हमने पहले ही कर लिया है, जिसमें जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं दे आर शोन बाय देयर सिंबल एंड फॉर्मूला। या एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हुआ AlCl3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ NH4OH, इसका भी सिंबल फॉर्मूला लिख दिया हमने। बन रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज AlOH होल थ्राइस, और बन रहा है अमोनियम क्लोराइड विच इज NH4Cl। अब ये देखो ट्रेडिशनल वे से जब हम लिख रहे थे तो इस रिएक्शन को लिखने में इतनी सारी लाइंस लग रही थी। इसी को जब हमने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा तो इन सिंपल वन लाइन वी हैव रिटन द होल इक्वेशन। AlCl3 plus NH4OH gives AlOH whole thrice plus NH4Cl. The whole reaction we have written in one line by writing all the substances, by showing all the substances by their formula. That smart representation, symbolic representation of the reaction is called equation. इसी इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं, that we have to know. पहले तो आप ये समझो कि हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हो तो उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। What information do we get? Informations conveyed by a balanced equation.
दैट्स द नेम ऑफ द टॉपिक। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये तो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, हर बैलेंस्ड इक्वेशन से कुछ इंफॉर्मेशन है जो मिलती है, कुछ और तरीके हैं जिनको इंप्लीमेंट करके हम अपने इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे एक बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जांपल लिया है। बैलेंस्ड इक्वेशन है 2H2 plus O2 gives 2H2O। अब इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? पहली इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन से हमें मिल रही है कौन किससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है। हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन H2 reacting with O2 means oxygen to form H2O means water। पहली चीज। दूसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें इनके मोल्स की। आपको मैंने बताया था कोफिशिएंट मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। H2 का कोफिशिएंट 2 है, O2 का कोफिशिएंट 1 है, H2 का कोफिशिएंट H2O का 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल हाइड्रोजन reacts with 1 mole oxygen to form 2 moles water। और तीसरी इंफॉर्मेशन हमें मिली इनकी मास की। 1 मोल H2 का मास होता है 2 into 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 into 1 2 ग्राम हुआ। यहां 2 मोल H2 है तो मास हुआ 4 ग्राम। 1 मोल O2 का एटॉमिक मास होता है 16 तो 1 मोल O2 का मास हुआ 16 into 2 32 ग्राम। और H2O का 1 मोल का मास होता है, H2 का मतलब 2H और 1 O। H का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 into 1 प्लस 16। 1 मोल ऑफ वाटर का मास हुआ 2 into 1 प्लस 16 माने 18 ग्राम। तो 2 मोल वाटर का मास हुआ मल्टीप्लाइड बाई 2 36 ग्राम। तो तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें यहां से मिल रही है वो ये है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। 1 मोल O2 का मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया टू फॉर्म 36 ग्राम वाटर। ये 3 इंफॉर्मेशन तो हर इक्वेशन से हमें मिलती है। जैसे एक और एग्जांपल यहां मैं ले रहा हूं। बैलेंस इक्वेशन है N2 plus 3H2 gives 2NH3। इससे भी 3 इंफॉर्मेशन। पहली नाइट्रोजन, N2 का मतलब नाइट्रोजन रिएक्टिंग विथ H2 का मतलब हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3 का मतलब अमोनिया। दूसरी 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्टिंग विथ 3 मोल हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल अमोनिया। और तीसरी 1 मोल नाइट्रोजन जिसका मास होगा 28 ग्राम, 3 मोल हाइड्रोजन जिसका मास होगा 6 ग्राम से रिएक्ट किया टू फॉर्म 2 मोल अमोनिया। 1 मोल अमोनिया का मास 17 ग्राम होता है तो 2 मोल अमोनिया का मास होगा 34 ग्राम। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद 6 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 ग्राम। ये 3 इंफॉर्मेशन तो हर बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें मिलती है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनको इंप्लीमेंट करके, यूज करके हम अपने इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और वही हमारा टॉपिक है, मेथड्स टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ऐसे 3-4 तरीके हैं जिनको यूज करके हम अपने इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला, बाय स्पेसिफाइंग द फिजिकल स्टेट। ये पहला है। फिजिकल स्टेट, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट स्पेसिफाई कर दो। यदि कोई सॉलिड फॉर्म में है, राइट स्मॉल s।
लिक्विड फॉर्म में है, राइट स्मॉल एल, गैसियस है, राइट स्मॉल जी, एक्वस सोल्यूशन है, राइट ए क्यू। जैसे H2 और O2 रिएक्ट करके 2H2O बनाते हैं, 2H2 + O2 2H2। अब हमें जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन था वो तो मिल ही रहा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाया, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल वाटर, ये सब तो मिल ही रहा है। यहाँ पे हमने फिजिकल स्टेट लगा दिया, H2 का गैस, O2 का गैस, H2O का लिक्विड। तो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस react with oxygen in the form of gas to form water in the form of liquid। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई। दूसरी जो हमारी एक्टिविटी 1.1 था, मैग्नीशियम बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म व्हाइट ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं कि Mg in the form of solid react with O2 in the form of gas to form magnesium oxide which is also in the form of solid। So by specifying the physical state we can make our equation more informative। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है, यदि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तेजी से, we can use upward arrow, और रिएक्शन के दौरान यदि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वी कैन यूज डाउनवर्ड एरो। बाय यूजिंग अपवर्ड एरो फॉर गैस इवॉल्व, डाउनवर्ड एरो फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म। जैसे एक्टिविटी 1.3 था गैस इवोल्यूशन के लिए, जिंक ग्रेन्यूल्स आर रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Zn+HCl, जिंक का क्लोराइड बनता है, ZnCl2 बना, और H2 का इवोल्यूशन होता है। तो H2 के साथ मैंने अपवर्ड एरो लगा दिया। अपवर्ड एरो लगाते ही देखने वाला समझने वाला तुरंत समझ जाएगा कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो गई है। देयर इज रैपिड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अपवर्ड एरो लगा के मैंने और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया इक्वेशन को। सिमिलरली एक्टिविटी जो 1.2 था, इन विच वी वर रिएक्टिंग पोटेशियम आयोडाइड विथ लेड नाइट्रेट, इसमें बनता था लेड का आयोडाइड और पोटेशियम का नाइट्रेट। लेड आयोडाइड PbI2, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। यहां जो लेड आयोडाइड है इट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, therefore we use downward arrow for the precipitate। Understand? एक और एग्जांपल, तो जहां भी गैस इवॉल्व हुआ वहां हम अपवर्ड एरो लगा सकते हैं, जहां प्रेसिपिटेट बना वहां डाउनवर्ड एरो लगा सकते हैं। वी कैन यूज डाउनवर्ड एरो। तीसरा एग्जांपल, स्लेक लाइम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करें। स्लेक लाइम सोल्यूशन जो व्हाइट कलर का होता है, स्लेक लाइम आपको पता है इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम, इसको हम लाइम वाटर सोल्यूशन भी बोलते हैं, और ये लाइम वाटर सोल्यूशन जो है वो व्हाइट कलर का होता है। लाइम वाटर सोल्यूशन से नींबू पानी मत समझ जाना। लाइम वाटर सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूशन ऑफ लाइम विद वाटर। अब लाइम बना है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करोगे स्लेक लाइम बन जाएगा, और स्लेक लाइम और वाटर के सोल्यूशन को बोलते हैं लाइम वाटर सोल्यूशन। ये व्हाइट कलर का होता है। जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं धीरे धीरे, तो आप देखते हो कि लाइम वाटर का जो व्हाइट कलर है वो धीरे धीरे टर्न होके इट कन्वर्ट्स मिल्की व्हाइट। एंड डू यू नो व्हाई डज इट कन्वर्ट मिल्की व्हाइट? क्योंकि रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनती है रिएक्शन में, प्लस वाटर बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, इसलिए आई हैव यूज्ड डाउनवर्ड एरो। एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम व्हाइट टू मिल्की व्हाइट।
ये रिएक्शन यहां मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यहां पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस रिएक्शन ओवर हियर. इस रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हैं. व्हाट विल हैपन इफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर सोल्यूशन? आप बता दोगे. द व्हाइट कलर टर्न्स मिल्की व्हाइट. When the CO2 is passed through lime water, the white color turns milky white. Why? Because CO2 react with lime water solution, CaOH twice, and a precipitate of calcium carbonate is formed. That's why the white color turns milky white. और तीसरी एक और चीज इस रिएक्शन के बारे में जाननी है. चूंकि CO2 पास करने पे इस रिएक्शन का कलर, सोल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है व्हाइट से मिल्की व्हाइट. देयरफॉर ये जो रिएक्शन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने में काम आती है. कोई गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, ओडरलेस गैस है, टेस्टलेस गैस है. गैस को देख के आप नहीं बता सकते कि वो CO2 है या नहीं है. पता करना हो कि वो CO2 है या नहीं है तो इस रिएक्शन को हम यूज में लेते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट. लाइम वाटर टेस्ट का मतलब ही हुआ द टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ड्यूरिंग द टेस्ट व्हाट वी डू, वी पास carbon dioxide through lime water solution. On passing the carbon dioxide through lime water solution, the white color of the lime water turns milky white. If a gas is able to convert white color of the lime water to milky white, the gas is 100% carbon dioxide. और चूंकि टेस्ट की बात हो रही है तो मैं साथ साथ एक और चीज बता दूं. दो गैसेस का जिक्र, दो गैसेस का टेस्ट हमें जानना है. नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो मैंने शुरू में बता दिया, लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन पे ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है, वो है NO2. वो अपने आप में ही टेस्ट है. ब्राउन कलर की गैस है माने NO2 है. दूसरा हो गया टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर के व्हाइट कलर को मिल्की व्हाइट में टर्न कर रहा है. और तीसरा टेस्ट हो गया टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन भी वैसे ही दिखता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. इनफैक्ट दिखते ही नहीं है क्योंकि ये दोनों गैस कलरलेस होते हैं. कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता, कुछ नहीं होता. हाइड्रोजन को हम परफॉर्म करते हैं पॉपअप टेस्ट से. यदि कहीं हाइड्रोजन निकल रही है, पता करना हो हाइड्रोजन है या नहीं है, तो उसके आसपास एक बर्निंग मैच स्टिक लाओ. इफ द burning matchstick burns with a pop sound, if the gas burns with a pop sound, क्योंकि हाइड्रोजन is highly combustible, most combustible substance on the planet is hydrogen. तो यदि कोई गैस पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, द गैस इज हाइड्रोजन. इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि टेस्टिंग की बात हो रही थी तो मैंने साथ साथ बता दिया कि आगे भी आपको ध्यान रहेगा. हमारा टॉपिक तो ये है कि हम इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, और उसमें पहला तरीका हमने देख लिया फिजिकल स्टेट को स्पेसिफाई करके. दूसरा तरीका मैंने बताया यूजिंग अपवर्ड एरो फॉर गैस इवॉल्व, डाउनवर्ड एरो फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड. तीसरा तरीका है उसी के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के दौरान लाइम वाटर टेस्ट आया था, और चूंकि टेस्ट की बात हो रही थी तो मैंने हाइड्रोजन का पॉपअप टेस्ट भी बता दिया साथ साथ. तीसरा जो तरीका है रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने का, इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने का, वो है बाय स्पेसिफाइंग द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन एट एरो. हर रिएक्शन को होने के लिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ स्पेशल कंडीशन में ही रिएक्शंस होती हैं. हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है, तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा.
यदि ऑर्डिनरी कंडीशन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाती, तो एयर में हाइड्रोजन भी है, एयर में ऑक्सीजन भी है, वो रिएक्ट करके वाटर बना लेते, एंड देयर वुड हैव नो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेफ्ट इन द एयर। लेकिन एयर में H2 और O2 रिएक्ट करके वाटर बना ही नहीं पाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्योंकि H2 और O2 को रिएक्ट करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो एटमॉस्फेयर में नहीं है प्रेजेंट। ये जस्ट एक एग्जांपल है। फॉर एवरी रिएक्शन टू अकर सम कंडीशन इज रिक्वायर्ड, और जिस भी कंडीशन में रिएक्शन हो रही है उस कंडीशन को आप एरो के ऊपर या नीचे स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे बेस्ट एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज, ऑक्सीजन बनता है और साथ में वाटर भी बनता है। वाटर पार्ट भी लेता है, बनता भी है। डिफरेंस ये है 12 मोल वाटर का पार्टिसिपेशन होता है और 6 मोल वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल लिखोगे तो रिएक्टेंट साइड में ही आएगा, लेकिन वी राइट द रिएक्शन इन द वे, हम वाटर लेफ्ट में भी लिखते हैं, राइट में भी लिखते हैं, ताकि पता रहे कि वाटर कंज्यूम भी होता है और वाटर बनता भी है फोटोसिंथेसिस के दौरान। दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। And for this reaction to occur, two conditions are required: presence of chlorophyll and sunlight. Whatever conditions are required for the reaction to occur, I have specified the condition over the arrow. Similarly, CO is carbon monoxide, reacts with the hydrogen to form a substance called methanol. Methanol whose formula is CH3OH. मीथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है। एल्कोहल के बहुत सारे मेंबर्स हैं, मीथेनॉल, इथेनॉल। जब हम कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। इथेनॉल वाइन्स में काम आता है। इथेनॉल वो एल्कोहल है विच इज यूज्ड इन वाइन्स, लेकिन यहां मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है CH3OH। एंड ऐसा नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से कभी भी रिएक्ट कर लेगा। फॉर द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ हाइड्रोजन 340 ATM का प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। ATM इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या वैल्यू होती है। 340 ATM पे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म मीथेनॉल। तो जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड है आई हैव स्पेसिफाइड एट द एरो। दिस इज द थर्ड कंडीशन बाय यूजिंग विच यू कैन मेक योर इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वे बाय विच वी कैन मेक आवर इक्वेशन इंफॉर्मेटिव is by specifying the heat change। जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक रिएक्शन के दौरान हीट चेंज हो सकता है, और यदि हीट चेंज हो रहा है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी। हीट कैन बी इवॉल्व्ड, इट्स कैन बी एक्सोथर्मिक, और हीट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, इट कैन बी endothermic. If it is exothermic, if the heat is evolved plus heat, we can write along with the products, जैसे slaking of lime में lime, that is quicklime, which is CaO, reacts with the water. स्लेक लाइम बनता है विच इज CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट इज इवॉल्व, तो प्लस हीट मैंने प्रोडक्ट के साथ लिख दिया। तो इस रिएक्शन को देख के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कैल्शियम ऑक्साइड in the form of solid reacting with water in the form of liquid to form calcium hydroxide in the form of solid, and along with that heat is evolved because plus heat is written along with products. Similarly, if the heat is absorbed, if the reaction is endothermic,
we can specify plus heat along with reactants. जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करते हैं, मैंने प्लस हीट लिख दिया along with reactant to form lead oxide, a brown color gas NO2 plus O2. ब्राउन कलर की गैस NO2 का इवोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे प्लस हीट मैंने रिएक्टेंट के साथ लिख दिया है, तो इससे पता चल रहा है कि लेड नाइट्रेट जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये रिएक्शन होती है और लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है। These are some ways using which we can make our equation more informative. 4 तरीके। पहला, by specifying the physical state. दूसरा, by using upward arrow for gas evolved, downward arrow for precipitate form. तीसरा, by specifying the condition of reaction at arrow. और चौथा, by specifying the heat change, by writing plus heat along with products for exothermic reaction, by writing plus heat along with reactant for endothermic reactions. That is the end of the topic. Now we have the last topic left, that is types of chemical reactions. That will be our last topic.